اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان کی ان مقدس گھڑیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کریم اللہ ان مقدس لمحات سے ہمیں بھی استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو کچھ انجام دیا جا رہا ہے اس کو قبول فرما۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس طرف متوجہ ہیں کہ ماہ مبارک رمضان حقیقت میں قرآن کی بہار کا موسم ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، بلکہ حدیث میں بھی یہ لفظ آئے ہیں کہ ہر شے کی ایک موسم ربیع اور موسم بہار ہوتا ہے، اور قرآن کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ لفظ ربیع سے ایک اور لفظ یاد آ رہا ہے، جناب امی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں قرآن مجید ربیعا لقلوب الفقہا، یہ فقیہوں کی دلوں کی بہار کا نام بھی قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے، اور فقیہ جس کو ہم کہتے ہیں اس فقیہ کے دلوں کی بہار کا نام قرآن مجید ہے۔ یعنی فقیہ اگر قرآن مجید کی گہرائی میں اترتا ہے اور مسائل فقہیہ کو اس سے غور کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک بہار کا موسم ہوتا ہے۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے، لیکن ساتھ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کو جہاں پڑھا اور سنا جاتا ہے وہاں قرآن مجید کو سوچا اور سمجھا بھی جائے، اس پہ فکر کی جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس کی گہرائیوں میں اترا جائے۔ اور میں بارہا یہ جملہ کہہ چکا ہوں، جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، قرآن مجید کا ظاہر بھی خوبصورت ہے اور قرآن مجید کا باطن بڑا ہی گہرا ہے۔ اب یہ کتنا گہرا ہے قرآن مجید کا باطن؟ صدیوں سے لوگ اس کی گہرائی میں اتر کے موتی نکال رہے ہیں، اور آج بھی مفسرین جب تفسیر لکھتے ہیں تو ایسے نئے پہلو سامنے آتے ہیں کہ جو واقعاً یہ بتلاتے ہیں کہ قرآن کی گہرائی کیا ہے۔ میں ابھی اس کی طرف نہیں جاتا۔ بہرحال قرآن مجید کی بہار کے اس مہینے میں قرآن مجید ہم کس سے سمجھیں؟ اگر ہمیں سننے اور پڑھنے کے ساتھ سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس ذات گرامی کے اس فرمان کو دیکھنا ہے کہ باطن ہو عمیق، کہ اس کا باطن بڑا گہرا ہے۔ کتنا گہرا ہے؟ جتنی آپ کی طاقت ہوگی اور جتنے آپ کے پاس وسائل ہوں گے گہرائی میں اتر سکتے ہیں، اتنے ہی یہ گہرا قرآن مجید کا باطن ہے۔ اب اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما گئے، یا پھر اس کے دروازے پہ جانے پڑے گا جس کو خود پیغمبر اکرم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یا انا دار الحکمت وعلی بابها۔ دونوں اعتبار سے جناب امیر المومنین سے پوچھنا پڑے گا کہ یا علی قرآن مجید کی گہرائی بتلائیے، قرآن مجید کے اندر ہمارے زندگی کے اصول جو درج ہیں وہ بتلائیے۔ تو اب اس حوالے سے ہم گزشتہ ہفتے جو بات شروع کی وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے تقریباً 150 آیات بیان فرمائی ہیں، اور یہ 3 مسلسل خطبے ہیں، خطبہ 218، 19 اور 20۔ ان خطبات میں جناب امیر علیہ السلام نے بعض حصوں کی تفصیلی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ ہمارا موضوع بحث ان ایام میں نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 220 ہے، جہاں جناب امیر علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ امام نے خود تلاوت فرمائی آیت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکہ دیا ہے۔ ما غرک بربک الکریم،
اب خود رب جو ہے وہ لفظ رب یہی بتلاتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو پیار کے ساتھ کسی چیز کی پرورش کرتا ہے۔ تو اب وہ کریم رب جو ہے وہ اس میں ساری اس کی رحمتیں اور اس کے اوصاف کریمانہ آ جاتے ہیں۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کیسے بیان فرمائی، گزشتہ ہفتے کچھ چیزیں بیان کی تھیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسی پہ غور کیجئے کہ یہ غرہ کا تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور کس عنوان سے دھوکہ دیا ہے؟ رب سے دھوکہ دیا ہے۔ اب وہ دھوکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نشاندہی کر دی ہے۔ وہ دھوکہ دینے والا وہ ہے جس نے بڑی مدت سجدے کیے، وہ دھوکے دینے والا وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اتنا اللہ کے قریب سمجھا کہ وہ صف ملائکہ میں شمار ہونے لگا، اور ایک حکم الہی کی خلاف ورزی پر، اور وہ فقط خلاف ورزی نہیں تھی، یہ ایک بڑا دقیق جملہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ شیطان کی فقط نافرمانی نہیں تھی، بلکہ پورا خطبہ جو نہج البلاغہ کا سب سے تفصیلی خطبہ ہے وہ ہے خطبہ قاسیہ۔ خطبہ قاسیہ میں جناب امیر المومنین نے جس چیز کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ ہے شیطان کے تکبر کو، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تکبر کی بنیاد رکھنے والا ہے شیطان، یعنی فقط نافرمانی نہیں تھی، بلکہ اس دھوکے دینے والے نے خود کو متکبر بنایا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور بڑا سمجھ کے پھر اللہ کے سامنے کہا کہ نہیں، میں یہ سجدہ نہیں کرتا۔ اب یہ کہ بڑائی جو ہے وہ اللہ کے سامنے نہیں کر رہا تھا، بلکہ بڑائی جو ہے وہ ثابت کر رہا تھا جناب آدم کے سامنے۔ یہ ایک بحث میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ وہ جس نے دھوکہ دیا ہے، آیت کو پھر دیکھیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے۔ اب اگر ماہ مبارک رمضان میں فرصت ملے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس چیز پہ غور فرمائیے گا، کس چیز نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ دھوکہ دینے والا شیطان ہے، شیطان رجیم۔ اس لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے، یہ کہو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن کی تلاوت شروع کرو تو اس شیطان ملعون سے میری پناہ میں آ جایا کرو اور پناہ مانگ لیا کرو، پروردگار ہم اس شیطان رجیم سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یعنی خود یہ آیت بتلاتی ہے کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے اصول زندگی، اصول کمال، اصول سعادت، اصول خیر کو حاصل کرنا ہے تو اس سے پہلے اس شیطان سے دور ہونا پڑے گا، اور اس سے نفرت کا اظہار کرنا پڑے گا، تب ہم قرآن مجید سے استفادہ کر سکیں گے۔ تو اب ما غرک بربک الکریم، اگر ہم سے یہ سوال اللہ پوچھ رہا ہے، پھر جناب امیر علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، تو اگر جواب دیا جائے تو جواب یہ ہے کہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے، اور شیطان مسلسل دھوکہ دینے میں مشغول ہے۔ شیطان کو اللہ نے ایک محدود وقت تک زندگی دے دی ہے اس کے مانگنے پر۔ اب وہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، اتنا دھوکہ دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا، عدو لی وعدو لکم، یہ میرا بھی دشمن ہے اور آپ کا بھی کھلا دشمن ہے۔ یہ خود بتلا رہا تھا اللہ کریم کہ یہ شیطان خود تو مجھ سے دور ہوا ہے، کہیں آپ کو بھی مجھ سے دور نہ کر دے، مجھ سے دھوکہ نہ دے دے۔ اب خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دھوکہ دینے والا کون ہے؟ دھوکہ دینے والا شیطان۔ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کی تلاوت سے پہلے، قرآن کے بطون میں اترنے سے پہلے، قرآن کو سمجھنے سے پہلے اس شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، اور پھر اللہ سے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اس دشمن کے مقابلے میں اپنی پناہ میں لے لے۔ تو ما غرہ کا دھوکہ دینے والا کون ہے؟ شیطان۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ شیطان دھوکہ دیتا کیسے؟ اس پوائنٹ پہ ذرا غور فرمائیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ شیطان متکبر بناتا ہے۔ بڑا دقیق جملہ ہے یہ ذرا۔ شیطان متکبر بناتا ہے، یعنی جس جرم کی وجہ سے خود وہ دھتکارا گیا ہے، وہ تکبر ہے،
वो मर्ज मैं बाज़ किताबों में देख रहा था और आजकल तो आपके सामने है, ये कोरोना की मर्ज जो है वो ऐसी मर्ज है कि जो एक बंदा कितने अफराद तक फैला देता है। वो मर्ज फैलती हुई नजर नहीं आती और खुद मर्ज भी नजर नहीं आती। शैतान भी ऐसा है, खुद भी नजर नहीं आता और जब वो अपनी मर्ज फैलाता है तो महसूस नहीं होने देता कि ये दिखलाई दे कि हम इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। शैतान की सबसे बड़ी मर्ज क्या है? शैतान की मर्ज है तकब्बुर। उसने तकब्बुर किया और फिर आगे उसका जुर्म जो है वो जारी है आज तक। उसने फिर अपनी फौज बनाई और फौज इंसानों में भी है और जिनों में भी है और मुख्तलिफ रूपों में उसकी फौज है। तो शैतान बगैर दिखाए हुए अपनी उस मर्ज का अपना वो रोग दूसरों में मुंतकिल करता रहता है और करना चाहता है। और वो क्या है? वो तकब्बुर है। यानी जो मर्ज शैतान को शैतान बना गई और जिस मर्ज को शैतान दूसरों में मुंतकिल करता है वो है तकब्बुर। अब अगर धोखा देने वाला शैतान है और वो पहला काम ये करता है कि इंसान को मुतकब्बिर बना देता है। मुतकब्बिर, अब हम जैसा फर्द कैसे मुतकब्बिर बनेगा? ये नहीं है कि हम अल्लाह के सामने उसके हुक्म की नाफरमानी करेंगे, लेकिन ये होगा कि हम बाज़ औक़ात अपनी इबादतों को बड़ा समझ देंगे और फिर अपनी इबादतों के ज़रिए से अल्लाह पे एहसान जतलाएंगे। हमने कई दफ़ा देखा और कई अफराद हम जैसे जो हैं वो कह जाते हैं, ये हमने तो इतने सालों से बाकायदगी से नमाज पढ़ी है, वाजिबात अदा किए हैं, हम ये करते हैं और वो करते हैं, हम सदका भी देते हैं और सारी जो नेकियां हैं उनको गिनवा के अल्लाह फिर भी हमारे ऊपर जो है वो ये मुश्किलात तारी हो रही हैं। गोया इसी एक जुमले ने हमारी इबादतों की क्या हालत बना दी है। हम नमाज पढ़ रहे थे, रोजे रख रहे थे, हज किया था, सदकात दे रहे थे, बाकी सारे उसके वाजिबात अदा कर रहे थे। हम बीमार हैं 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से हमें बीमार हैं। यानी हमारी ये बीमारियां किस लिए थी? फिर अल्लाह के लिए तो माज़अल्लाह न हुई। हमारी बीमारियां, हमारी इबादतें इसलिए थी कि हम बीमारियों से महफूज रहें। इस जुमले पे गौर कीजिए और ये अपनी नीयत को भी देखिए कि हम उसकी इबादत किस लिए करते हैं। हम उसकी इबादत इसलिए नहीं करते कि वो हमें सहूलियात दे। हाँ, फिर यहाँ जुमला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा का ही दोहरा लीजिए। यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ लफ्ज़ों में नहजुल बलागा के जो अल्फाज हैं कि बाज़ लोग जो हैं वो इबादत करते हैं जन्नत के लिए, बाज़ करते हैं जहन्नम के खौफ से, और हकीकी इबादत क्या है? वो अल्लाह की अज़मत के लिए है, जो इबादतुल अहरार है, आज़ाद बंदों की इबादत है। मशहूर जुमला जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का, परवरदिगार मैंने न तेरी जन्नत की लालच में इबादत की है, न तेरे जहन्नम की खौफ से इबादत की है, बल्कि मैं तुझे लायक इबादत समझता हूँ, इसलिए तेरी इबादत करता हूँ। देखिए कहीं ऐसे ना हो कि हमारी इबादत जो भी है, हमारी इबादत हमें मुतकब्बिर न बना दे और उस तकब्बुर का इजहार यही होता है कि हम तेरी इबादत करते हैं। नहीं, इबादत हम करते हैं, तू कबूल फरमाए न कबूल फरमाए, और इबादत जो नहीं करते वो भी तेरे बंदे हैं, तेरी रहमत तो उन पे को भी शामिल है। तो गुरूर और में मुब्तला करने वाला, धोखा देने वाला कौन है? शैतान, जो खुला दुश्मन है। अल्लाह फरमाता है मेरा दुश्मन भी और आपका भी दुश्मन है। मैं बारहा इस जुमले को अर्ज किया करता हूँ और दोहरा रहा हूँ यहाँ कि अगर किसी को बाप के साथ दुश्मनी हो तो शरीफ औलाद बाप के दुश्मन को दुश्मन ही समझते हैं। और दुश्मनी की जो तकसीम की है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने, वो यही है कि आपका दुश्मन आपके दोस्त का दुश्मन, और तो आपके दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन ही होता है। अभी हमारा भी दुश्मन है ये और हमारे बाप का भी दुश्मन है। जनाब आदम का दुश्मन है शैतान। तो उस शैतान के धोखे में नहीं आना चाहिए। उस धोखे का पहला तरीका वो क्या है? तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। हमने ये इतनी इबादतें की। नहीं, इबादत जितनी भी कीजिए उस इबादत में एक चीज़ मद्देनज़र रखिए। ये जुमला भी जनाब अमीरुल मोमिनीन का, इमाम फरमाते हैं दूसरों की इबादत को कम मत समझिए, अपनी इबादत को ज़्यादा मत समझिए। मुमकिन है मेरी ज़्यादा इबादत हो और आखिर में वो इबादत ज़ाय हो जाए और दूसरे की इबादत थोड़ी सी हो और वही कबूल हो जाए। अभी बड़ी इबादत वही हुई जो कबूल हो गई। लिहाजा इस अपनी इबादत पे कहीं फ़ख्र और गुरूर नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने
खुतबह कासिया में शैतान के तकब्बुर को बड़ी वजाहत से पेश किया है। और इस खुतबे को यानी खुतबा है ही तकब्बुर के उन्वान से अगर आप इसको देखें, खुतबह कासिया शुरू में इसका नाम के साथ ही लिख दिया गया है, फहरिस्त में जो है वो खुतबह कासिया। बहरहाल इस खुतबे को अगर हो सके तो किसी वक्त जो है वो पढ़िएगा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज में शैतान के तकब्बुर को बयान किया है। ये खुतबा नंबर 190 है नाजुल बलागा का। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के इस खुतबे की इब्तिदा में लिखा है कि वह ततज़म्मनु ज़म्म इब्लीस लअनहुल्लाह अला इस्तिकबार, कि ये खुतबा जो है वो इब्लीस के तकब्बुर के बारे में है। और पहला जुमला ही अजीब, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लाबिसल इज़्ज़ वल किब्रिया, हर तारीफ अल्लाह के लिए है जो इज़्ज़त व किब्रियाई की रिदा ओढ़े हुए है। यानी ये बुलंदी और ये बुजुर्गी उसी को ज़ेब देती है। बहरहाल अब इस खुतबे को, और ये तकब्बुर हमारा मौजू नहीं है। शैतान गुरूर में मुब्तला करता है, धोखा देता है। पहला उसका तरीका क्या है, तकब्बुर। और दूसरी चीज़ जिसको जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बहुत छेड़ा, और इसको ज़रा आप तवज्जो फरमाइएगा, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम की आयत को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने सबसे ज़्यादा बहस जो की है वो बहस है तौहीद की। और इस पे एक बड़ी खूबसूरत किताब अभी इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अल्लामा अली नक्की साहब की एक किताब है, वो उसको दोबारा प्रिंट की कोशिश की जा रही है। वो किताब है सनाए परवरदिगार। मुझे बहुत प्यारा लगा नाम इसका। और जो उसमें है वो यानी तौहीद के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द के बारे में, लेकिन मरहूम ने नाम बड़ा प्यारा रखा, सनाए परवरदिगार। अल्लाह की सना अगर कोई कर सकता है तो वो अली ही फरमा सकते हैं। बहरहाल सबसे ज़्यादा मौजू जिसको जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है वो है सनाए परवरदिगार, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की हम्द। और इसके बाद जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में दूसरा मौजू सबसे ज़्यादा है वो है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम इस दुनिया के गुरूर के मुतल्लिक ही बयान फरमाते हैं, यानी दुनिया की मुज़म्मत। अभी दुनिया के गुरूर से निकलने के लिए वो बहस भी इसी में आ जाती है। वो मौत का तज़किरा, कब्र का तज़किरा, मौत और कब्र का तज़किरा भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन मैं उसको इसी का हिस्सा समझता हूँ कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौत को याद रखिए, कब्र को याद रखिए, और इस याद के ज़रिए से आप दुनिया की हकीकत को जानिए। तो ये मौत, कब्र और दुनिया की जीनत ये एक ही बहस है। तो तौहीद के बाद जो बहस ज़्यादा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है वही दुनिया का धोखा। शैतान धोखा देता है या तकब्बुर के ज़रिए से, या वो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है और हर किसी के लिए इस्तेमाल करता है वो है ज़ीनत दुनिया, कि वो दुनिया को हमारे सामने सजा कर पेश करता है और हम फिर उसके धोखों में आ जाते हैं। ये हकीकत में शैतान है। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का ये जुमला दुनिया के बारे में मशहूर है, दुनिया तगुर्रो व तज़ुर्रो व तमुर्रो, दुनिया धोखा देती है, नुकसान पहुंचाती है और भाग जाती है। एक जगह पे कोई 8 मुख्तलिफ जुमलों में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने दुनिया की मज़म्मत की है। उसमें एक जुमला इमाम का, एक कलमा ये है, इमाम फरमाते हैं अल-गार्रा, ये दुनिया धोखा देने वाली है। तो दुनिया धोखा देने वाली है। हकीकत में शैतान दुनिया को सजा के हमें धोखा देता है। तो शैतान के धोखा देने के 2 हथियार हैं, तकब्बुर और दुनिया की जीनत। लिहाजा या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इस आयत की अगर तफसीर देखनी है तो धोखा देने वाले और उसके धोखा दही के ज़रियों को पहचानना होगा, और फिर कुरान मजीद में इसका इलाज भी तलाश करना होगा। अब इलाज के बारे में आज की बहस में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जो एक अजीब अंदाज से, वाक़ई ये मुअल्लिम कुरान अगर हम इनके अंदाज़ तफसीर से कुरान मजीद को समझें तो वो उसके मफ़ाहीम ही अलग होंगे।
जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान तुझे दुनिया ने धोखा दिया है, जुर्रत दी है उस अल्लाह के सामने। लेकिन आज जो बहस हम करना चाहते हैं वो ये है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान ज़रा अपने आप को देख। तीसरा जुमला जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ आज, वमा आनसका बिहलकत नफ्सिक, किस चीज़ ने तुझे अपनी तबाही पर मुतमईन कर दिया। आनसा का मोहब्बत पैदा कर दी है, उन्स पैदा कर दिया है अपनी ही तबाही पे। देखिए, इंसान अगर ये समझ जाए कि ये तबाही हो रही है तो उससे बचता है। जनाब अमीर ने लफ्ज़ आनसा इस्तेमाल किया है कि आपको किस चीज़ ने धोखा दिया है और किस चीज़ ने मोहब्बत पैदा कर दी है आपके दरमियान, कि आप अपने आप को तकलीफ देने में, अपने आप को धोखा देने में, जनाब अमीर के लफ्ज़ हैं अपने आप को हलाक करने में। बेहलकत नफ्सिक, तुझे अपने, मुफ्ती साहब ने जो तर्जमा किया है, तुझे अपनी तबाही पर किस चीज़ ने मानूस कर दिया है कि तेरी तबाही हो रही है और तू मानूस है उससे। वो क्या है? दुनिया को जैसे शैतान हमसे चाहता है, हम दुनिया को वैसे ही चाहते हैं। नहीं, दुनिया को चाहिए, ज़रा इस जुमले पे गौर फरमाइएगा, दुनिया को चाहिए, लेकिन दुनिया को चाहें ऐसे जैसे अली चाहते हैं। अली दुनिया को चाहते हैं, मैं लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ। और जनाब अमीर कैसे चाहते हैं? नाजुल बलागा में फरमाते हैं, अद्दुनिया मतजर औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के वलियों की बाजार है, अल्लाह के वलियों के लिए मार्केट है, अल्लाह के वलियों के लिए तिजारत की जगह है। दुनिया को चाहिए, लेकिन इस दुनिया को एक मंजिल न समझिए, बल्कि दुनिया को एक मार्केट समझिए। हम आए, हमने अपनी ज़रूरत इससे लेनी है और शाम को ये मार्केट बंद हो जाएगी, हमें वापस चला जाना है। वो मार्केट बंद होने से पहले पहले हमें कुछ ले लेना है। अब ये मतजर औलिया अल्लाह, अल्लाह का वली बन ही वो सकता है जो इसको मंजिल नहीं समझता बल्कि इसको मार्केट समझता है। अब वो क्या लेता है वो एक अलग बहस है कि फिर वो दुनिया से क्या लेता है। दुनिया से लेके ये दुआ भी अल्लाह ने बतला दी, वो कहता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हमें इस दुनिया में हसना अता फरमा, यानी वो चीज़ अता फरमा जो हमारे लिए हसन हो। एक आयत और ज़हन में आ रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि बहुत सारे लोग अपने लिए ऐसी दुआएं करते हैं जिसको, और ऐसी चीज़ें मांगते हैं जिन चीज़ों को अपने लिए वो हसन समझते हैं, अच्छा समझते हैं, लेकिन हकीकत में उनके लिए वो अच्छी होती नहीं है। अब अगर अल्लाह उनको नहीं देता तो इस बिना पर नहीं देता कि वो चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कहीं दुनिया की जीनत के धोखे में आके और शैतान का कहा मान के ऐसे न हो कि हम अपने नफ्स को हलाक करने से मानूस हो जाएं, मुतमईन हो जाएं। फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इसी अपने हलाक होने की वजाहत बड़े ही प्यारे अंदाज में की है। अल्लाह करे हम कुरान समझें, उस तर्जमान कुरान। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में अपने आप को तर्जमानुल कुरान कहा है। इस पे गौर फरमाइएगा। आज हमारे इस्लामी दुनिया में अगर लफ्ज़ तर्जमानुल कुरान कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास को। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास वो अली के शागिर्द हैं कि जब किसी ने कहा था कि अब्दुल्ला आपका इल्म कितना वसी है, तो उन्होंने कहा मेरे इल्म की अली के इल्म के साथ अगर आप कंपेयर करो, तकाबुल करो, तो ऐसा है जैसे समुंदर में एक कतरा। अब वो तर्जमान कुरान हैं हकीकत में, इसलिए कि उन्होंने तफसीर सीखी है जनाब अमीरुल मोमिनीन से, जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने। लेकिन उस्ताद उस्ताद रहे और शागिर्द शागिर्द रहे। जिस उस्ताद के शागिर्द को तर्जमानुल कुरान कहा जा सकता है वो उस्ताद किस मकाम पे होगा। लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने खुद नहजुल बलागा में फरमाया है कि मैं हूँ तर्जमानुल कुरान, और फिर फरमाते हैं मैं हूँ नातिक कुरान। दोनों जगहों पे ये मैं उस वजाहत में नहीं जाता। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान से बोलो लेकिन आपसे बोलेगा नहीं, मैं कुरान की तर्जमानी करते हुए कुरान की तरफ से आपसे बोलूँगा। बहरहाल वो एक अज़मत कुरान जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। लेकिन तर्जमानुल कुरान से हमें कुरान के इस या अय्युहल इंसान
मा गर्रक बिरब्बिकल करीम की तफसीर पूछनी है। नबी अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा आनसका बिहलकत नफ्सिका, तुझे अपनी ज़ात के हलाक होने पर किसने मानूस कर दिया है, मुतमईन कर दिया है। और फिर मिसालें देखिए, जनाब अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमामिन दाइक बुलूल, क्या तेरे मर्ज के लिए कोई शिफा है, हम लैस मिन नौमतिक यक़ज़तुन, या तेरे ख्वाब गफलत से कोई बेदारी है। ये दो जुमले मैं वजाहत में नहीं जानना चाहता, वरना लैस मिन नौमतिक यक़ज़ा, इंसान चलता फिरता इंसान है, और इमाम फरमाते हैं वो सोया हुआ है। नौमतिक, क्या तो ख्वाब में है, क्या कोई जगाने वाली चीज़ नहीं है, खुद अली जगाने आ रहे हैं। और इन तफसीर की जुमलात के ज़रिए से हकीकत में हम अगर माह मुबारक रमज़ान में कुरान से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं तो हमारे लिए ये वाज़ेह होना चाहिए कि कुरान हमारे लिए जगाने का ज़रिया है कि आप जागिए और इस माह मुबारक रमज़ान में कुरान मजीद से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कीजिए। अब बहरहाल जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमामिन दाइक बुलूल, ये जो तुझे धोखे की मर्ज लगी हुई है, क्या तेरे इस मर्ज के लिए कोई शिफा है। अम लैसा मिन नौमतिक यक़ज़ा, या इस धोखे में आके जो तू सोया हुआ है, ख्वाब में है। नौमतिक यक़ज़ा, बड़ा प्यारा जुमला जो है वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का एक ये जाहिज़ हैं जिन्होंने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के 100 कलिमात को जमा किया है, और ये अहले सुन्नत आलिम हैं, यानी इनकी मैं कभी अर्ज़ किया है, इनकी 255 हिजरी में यानी विलादत इमाम असर के साल में इनकी वफ़ात होती है। जाहिज़, इन्होंने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के 100 कलिमात जमा किए हैं, और 100 कलिमात में से ज़ाहिरन दूसरा कलमा जो है वो जाहिज़ का ये है, अन्नासु नय्यामुन इज़ा मातु इंतबहू। यहाँ देखिए, सोए हुए लोग कब जागेंगे उस वक्त जब मरेंगे। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या तेरी इस अम लैस लक मिन नौमतिक यक़ज़ा, अमीर फरमाते हैं मरने से पहले ही अपनी ज़िंदगी में ही जाग जाओ, वरना इस धोखे में ही आप मर जाओगे। कोशिश ये करनी चाहिए इस कुरान मजीद के ज़रिए से माह मुबारक रमज़ान की इन मुक़द्दस घड़ियों में, और जब हर तरफ मौत ही मौत हमारे सामने मंडला रही है, बड़ा काम यही हो रहा है कि कहाँ कितने मरे। और आजकल रेटिंग मुल्कों की 5वां मुल्क बरतानिया हो गया, जिसमें मरने वालों के नंबर 20,000 से ज़्यादा हो गए। कहाँ कितने मरे, किस इलाके में कितने मरे, ये बाकायदा डेटा जो है वो दिया जा रहा है। तो इस हालत में कम अज़ कम हम मरने से पहले अपने आप को ख्वाब गफलत से जगा लें। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जो जुमला फरमाते हैं वो ये है कि अपने नफ्स को खुद हलाकत में डाल के मुतमईन न हो जाएं। एक होता है आदमी, अगर कहीं उसको तकलीफ होती है तो वो जब उसको तकलीफ होती है तो वो चीखता है। एक आदमी ऐसा उससे मानूस हो जाता है कि उसको तकलीफ ही नहीं समझता। इसी तरफ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम इशारा फरमा रहे हैं, फरमाते हैं अमा तरहम मिन नफ्सिक कमा तरहम मिन गैरिक, क्या तू अपने आप पर इतना भी रहम नहीं करता, अपने मुफ्ती साहब के लफ्ज़ है तरस नहीं खाता कि जितने दूसरों के लिए तरस खाता है। फिर इमाम फरमाते हैं फला रुब्बमा तरस दाहिया मिन हर्रे शम्स फतुदिल्लो, बाज़ औक़ात तू किसी को जलती धूप में देखता है तो उस पर साया कर देता है। और तरल मुब्तला बिअलमिन, या किसी को तू दुख तकलीफ में देखता है तो युमिद्दु जसदहु, तो तुझे उसके जिस्म पर शफकत आती है, तब की रहमतन लहू, और तू रो पड़ता है उसके दुख की वजह से। देखिए दो जुमले, एक ये है कि किसी को सख्त तपती धूप पे देखता है तो उस पर साया करता है, या तो मुझे याद आ रहा है वो जुमला किसी शख्स का जवान बेटा जो है वो धूप पे काम कर रहा था, और बाप ने उसको बुलाया, बेटा धूप है आ जाओ। तो बेटे ने कहा बाबा मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने दूसरी दफ़ा बाप को बुलाया, यानी बाप वो होता है कि जो बेटे को धूप पे गवारा नहीं कर सकता। दूसरी दफ़ा उसने बुलाया, बाबा बेटा आ जाओ धूप है सख्त। तो उसने कोई तवज्जो नहीं की, बाबा काम कर रहा हूँ।
तीसरी दफ़ा उस बुज़ुर्ग ने बेटे को बुलाया नहीं, अपने पोते को उठाया। पोता यानी वो इनके बेटे का बेटा, वहाँ एक लहजे के लिए उनको धूप पे खड़ा किया। जब कुछ कहा नहीं है, जब उनके बेटे जो अपने काम में मशगूल था, अपने बेटे को यानी इस बुजुर्ग के पोते को धूप में खड़ा देखा तो वहीं से चीखा, बाबा इसको अंदर ले जाओ। तो वहाँ बाबा मुस्कुरा के उठाया अपने पोते को, उस पोते को अंदर ले गए और कहते हैं आपको अपने बेटे पे जितनी धूप में खड़े होने की तकलीफ होती है, मुझे भी अपने बेटे के धूप में खड़े होने की इतनी ही तकलीफ हो रही है। ये है जिसको प्यार होता है, उसको धूप में खड़े होते हुए देख के। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कोई ऐसा ही मजबूर सा आदमी भी धूप में हो, सख्त गर्मी हो, तो या उस पे साया किया जाता है या उसको साए में लाया जाता है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने नफ्स की हलाकत पे किस चीज़ ने तुझे मुतमईन कर दिया है कि तू किसी और को धूप में देखे तो उसके लिए तो साए का एहतमाम करता है, किसी और की बीमारी को देखे तो उसकी उस मर्ज को और उस तकलीफ और दर्द को देख के तेरे आंसू निकल आते हैं। और फिर जनाब इमाम फरमाते हैं, फमा सब्बरा का अला दाइक, लेकिन किस चीज़ ने तुझे अपनी ज़ात पर सब्र दिला लिया है कि तू सब्र से बैठा है। तुझे धूप में, तुझे अभी धूप से मुराद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम आगे जो है वो खुद फरमाते हैं कि तेरे साथ ये सारे मसाइब आ रहे हैं, और वो क्या है कि तू अपने आप को जहन्नम की आग की तरफ ले जा रहा है। तो गोया किसी को धूप में देख के, किसी को दर्द में देख के तुझे तकलीफ होती है, लेकिन जब तू जहन्नम की आग की तरफ और उस बहुत सख्त दर्द और दुख की तरफ अपने आप को ले जा रहा है, तो इमाम फरमाते हैं कि कम अज़ कम इस पे मुतमईन न हो। जिस तरीके पे दूसरों पे गमज़दा हो जाता है, उनको साए में लाने का एहतमाम करता है, अपने बचाने का भी एहतमाम कर। और फिर सवाल यही है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ये सारा कुछ कब होगा? जब तू अपने करीम रब से धोखा खा के किसी और तरफ चला जाएगा और करीम रब को छोड़ जाएगा। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपना क़ुर्ब अता फरमाए और हम उस शैतान पलीद के तकब्बुर और ज़ीनत दुनिया के धोखों में आके अपने करीम रब से दूर न हों, बल्कि उसके और करीब हों। और माह मुबारक रमज़ान की इन मुक़द्दस घड़ियों के सदक़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपना क़ुर्ब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।